آپ نے مینشن کیا کہ جو ساؤتھ ایشین ہونا ہے اس حوالے سے یہ آرگومنٹ اقبال احمد کا بھی ہے اور اس کے آپ نے کام بھی کیا. اب پوچھنا یہ تھا کہ بینگ ساؤتھ ایشین اس کا ایسنس کیا ہے؟ جو ڈائیورسٹی ہے، جو مسائل ہیں، ان سب کو اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ان تمام ایسنس کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ دعویٰ اور اس کے حقائق کیا ہوں گے کہ ہم ساؤتھ ایشین بنے یا ساؤتھ ایشین ہیں؟ اس چیز کو کس طرح سے ہم اس وقت پوری کوشش میں ہیں کہ ٹو نیشن کے ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی اس شناخت کو ختم کیا جائے، مگر کچھ تاریخی حقائق ہیں جن سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے. ایک تو یہ کہ ہم ادھر اور ادھر کے لوگ ہم شکل ہیں، زبانیں بھی ملتی جلتی ہیں، سوچ کا انداز بھی ملتا ہے. تو باوجود اس کے کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اب بھی اگر آپ جاتے ہیں، امرتسر جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، کوئی آپ کو گھورے گا نہیں وہاں پہ. وہ جب یہاں پر آتے ہیں وہ گھل مل جاتے ہیں. اب ہمارے اندر جذبات پیدا کیے گئے ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی، لیکن ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اصل میں یہ فرق آرٹیفیشلی ڈالا گیا ہے. سر پاکستان میں جو ریلیجیس اس سے بڑا کھڑے ہو کر اور اونچی آواز میں پلیز. سر پاکستان میں جو سیاست ہے یہ ریلیجیس ٹچ کے بغیر ممکن ہے سر؟ بغیر ریلیجیس ٹچ بے شک ہو. یہاں جو یہاں مسلمان طرح طرح کے آباد ہیں، کئی مسلک ہیں، شیعہ سنی، شیعوں کے اندر بھی فرق ہے، سنیوں کے اندر فرق ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ ہے. تو کون کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ہے، مگر یہ کہ ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. ریلیجس ٹچ رہے، بہت اچھی بات، کیا حرج اس میں؟ سر امریکہ جو پیسے دیتا ہے پاکستان کو، یہاں ڈالر لیتے ہیں، کیپٹلسٹ خود بارڈر بنائے ہوئے ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کیپٹلسٹ اس بارڈر کو ختم کریں گے، یا ایکسپلائٹیشن کو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انڈیا پاکستان یا دوسری چیزوں میں جو بارڈر ہیں اس کو کیپٹلسٹ ختم کر سکتے ہیں جو خود ان لوگوں نے بنائے؟ امریکہ اب تو نہیں دیتا ہے ڈالر پاکستان کو، بہت چاہتے ہیں کہ وہ دے، لیکن دیتا نہیں. بارڈر امریکہ نے نہیں بنایا، بارڈر بنا، تاریخی وجوہات تھیں اس کی. اب کوئی کہتا ہے کہ یہ انگریز کی سازش تھی، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے لڑ کے یہ بنایا. اس کتاب میں آپ کو یہ تمام نقطۂ نظر ملیں گے. لیکن دیکھیں بارڈر تو بن گیا، اب صرف یہ سوال ہے کہ ہم آپس میں اچھے ہمسائے کے طور پر کس طرح سے رہ سکتے ہیں. ہم نے پاکستان کے حالات کافی بگاڑے ہیں. جو ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں وہ ہماری اپنی مرضی کی تھی، وہ ہم نے شروع کی تھی. سن 47 میں، سن 65 میں آپریشن جبرالٹر، اور سن 99 میں کارگل میں. تو اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے نا. ہم نے یہ سب کچھ کیا تاکہ ہم کشمیر چھین سکیں انڈیا سے، وہ ناکام ہوا. سر سعودی عرب سے بھی پیسے آتے ہیں، ایران سے بھی پیسے آتے ہیں، یہ اشراف جو خود لے رہے ہیں، تو پھر اس چیز کو ہم کیسے؟ بھائی ایران سے کوئی پیسہ نہیں آتا، ایران تو کنگال ہے بالکل اس وقت. بالکل نہیں. ایران سے تیل آتے ہیں، ایران سے تیل آتا ہے، گیس آتا ہے، اور کچھ. جی نہیں. سر میرا کوشچن ہے برٹش رول کا پاکستان بنانے میں. پہلا کوشچن ہے کہ پاکستان کی ڈیکولونائزیشن ہوئی ہے، واقعی کمپلیٹ ڈیکولونائزیشن اگر ہوئی ہے تو کس طرح، یا بنگلہ دیش کی ڈیکولونائزیشن صحیح ہوئی ہے؟ کیونکہ جو میری اردو ٹھیک نہیں ہے، پٹ کرتا ہوں. ایک آتھر ہے وہ کہتا ہے کہ if Jinnah is regarded as the father of Pakistan, Churchill must qualify as its uncle. مطلب وہ اس کا چچا ہی لگتا ہے. اتنا مطلب اتنا کنسپیریسی کیے برٹش نے پاکستان کو بنانے میں.
اس سارے جو میرا ڈیکولونائزیشن کا کویشچن تھا اس میں یہ چیز پوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا سبارٹرن آج کل بھی جو حالات ہے سبارٹرن کویشچن جو ہے اس وقت بھی وہی تھا ابھی بھی ادھر وہی ہے اور یہاں کے سینٹر جو ہے سیم چیز مطلب سینٹر ہائی لائٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی جیسے آرمی ایکٹ جو ہے سب سے پہلے ہمارے اوپر ہی اپلائی ہوا ادریس کھٹک ابھی تک مطلب زندان میں ہیں اسی چیز پہ ریسنٹلی یہاں پر سیفما میں جو یہاں کے ایلیٹس ہیں اس کی وہ ہوئی تھی ایک میٹنگ تو میں بھی گیا تھا ہم نے کہا کہ آپ صرف یہ پروف کر دیں کہ جو ادریس کھٹک کو ہائی لائٹ ہے کم سے کم یہ چیز وہاں سے شروع ہوئی تھی کیونکہ 9 مئی سے یہ چیزیں شروع ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے اور سیم یہ چیز ابھی جو آپ نے تھوڑا بہت کہا کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان پر حملے کیے ہیں ہم کہتے ہیں ٹی ٹی پی نے تو پاکستان پر حملے نہیں کیے ٹی ٹی پی نے پشتونوں پر حملے کیے ہیں کیونکہ 2001 سے 2016 تک ابھی تک کوئی 16,000 پلس اٹیک ہوئے ہیں اور یہ اسپل اوور ہوئی ہے میں مانتا ہوں پنجاب اور اسلام آباد میں لیکن زیادہ مرکز ہم بنے اس لیے یہاں کے جو لاہور سینٹر جو ہے یہاں کے چاہے جو رائٹرز ہے میں ہوپ کرتا ہوں آپ نے کتاب میں ہمارا بہت کیس لکھا ہوگا لیکن یہاں کے جو رائٹرز ہے یہاں کے صحافی ہے یہاں کے جو بھی فلاسفر ہے وہ ہم ہی نہیں جو ہائی لائٹ کرتے ہیں اب کویشچن اگین اسی چیز پہ آتا ہوں کہ یہ جو ڈیکولونائزیشن ہوئی ہے اگر ہوئی ہے صرف پنجاب کی ہوئی ہے یا ہماری بھی ہوئی ہے ڈیکولونائزیشن اس حد تک ہوئی ہے کہ پہلے چہرے گورے تھے اب وہ ہمارے جیسے ہیں تو اس حد تک ہوئی ہے لیکن جو پاور سٹرکچرز ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور لوگوں کی شمولیت گورننس کے معاملات میں اب بھی اتنی ہی کم ہے جتنا کہ پہلے تھی بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلے شاید زیادہ تھی اب وار گھٹ گئی ہے. آپ پاکستان کا فیوچر پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے کیا دیکھتے ہیں پازیٹیو دیکھتے ہیں یا نیگیٹو دیکھتے ہیں کچھ دیر اور تو یہ نظام چلے گا کتنے مہینے چلے گا کتنے سال چلے گا کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اس وقت یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم طرزوں پر چل رہے ہیں. کچھ ہی وقت پہلے ہم IMF سے $1.1 بلین مانگ رہے تھے جو کہ کچھ بھی نہیں 2 کوڑیوں کے برابر ہے. آپ دیکھیں جو اڈانی کا نقصان ہوا تھا وہ $100 بلین کا تھا اور ہم IMF سے $1.1 بلین مانگ رہے تھے. ہر سال ہمیں $20 ارب مزید قرضے چاہیے اور اس کو ری پے کرنا ان قرضوں کی ادائیگی. اب کوئی بھی کسی کو بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ کیسے ہو سکے گا. یہ نظام چلے گا نہیں لیکن یہ اچانک ہٹے گا بھی نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جیسا کہ 1971 میں ہوا. فوج کی طاقت اپنی جگہ پر قائم ہے اور وہ طاقت استعمال کرنا جانتے ہیں اور پھر کریں گے. لہٰذا یہ ٹوٹے گا نہیں لیکن ادھر غربت افلاس اس میں بڑھاوا آتا چلا جائے گا. آپ Pakistan will be declining and we have to focus on global politics. So we have to leave the India-Pakistan question. What are your stake on that? اردو میں کر لیں سر. Recently مجھے اسپیچ کی تھی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا ہمیں گلوبل پالیٹکس پر فوکس کرنا ہے. یہ انڈیا-پاکستان کوشچن کو ہم نے ابھی نہیں چھیڑا. آپ کا کیا اسٹینس ہے اس پر؟ کس چیز مودی کا جو ریسنٹ آیا اس نے کہا تھا کہ پاکستان ریٹائرڈ نہیں. مودی said that Pakistan will retire on its own. اچھا مودی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان خود سے مر جائے گا. دیکھیے یہ عجیب سی بات ہے. 250 ملین لوگ کیسے مرے تھے ایک وقت پہ نہیں ہو سکتا نا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوشش تو کر رہے ہیں ویسے تھوڑا بہت ایک دوسرے کو مارتے رہے لیکن یہ کوئی وائبل اسٹیٹ کوئی ایسی صحت مند ریاست نہیں بن پائے گی
हम देखते हैं कि बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, कि इंडिया तो मीलों आगे निकला हुआ है, पाकिस्तान रेंगता रहेगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई ऐसा धमाका नहीं होगा, मगर इधर हालात बतदरीज बिगड़ते चले जाएंगे। सर ये क्या कहते हैं, कश्मीर मसले को साइड करके पाकिस्तान इंडिया का मुस्तकबिल क्यों नहीं बेहतर हो सकता, जैसे कि मिडिल ईस्ट के सारी कंट्रीज कश्मीर को मसले को साइड करके रखते हैं? कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल हो सकता? नहीं, उसे साइड रखते हम पाकिस्तान इंडिया का क्यों नहीं बेहतर हो सकता? हिंदुस्तान से कॉपरेशन क्यों नहीं हो सकती? ट्रेड वगैरह। तो जो बात आप कर रहे हैं ना, इंतहाई माकूल है कि कश्मीर का मसला है, रहेगा, लेकिन इस दौरान कम से कम हमें एक दूसरे के साथ बात तो करनी चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, इधर से उधर लोगों को जाना चाहिए। और ये बात सिर्फ एक शख्स को समझ में आई है, यानी एक ऐसा शख्स जिसके पास एक्चुअली पावर था, जनरल मुशर्रफ ने जो एक काम अच्छा किया, कर नहीं कर सका पूरी तरह से, लेकिन उसने कहा कि देखो कश्मीर का मसला जोर बाजू से हल नहीं हो सकता, अब चलो हम इस लाइन ऑफ कंट्रोल को नरम कर देते हैं। और फिर एक था जे.एन.निक्षत प्लान, उसके तहत बातचीत हो रही थी इंडिया के साथ, लेकिन फिर उसने चौधरी इफ्तिखार को निकाल दिया, फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, तो मुशर्रफ बहुत कमज़ोर हो गया। अगर हालात साजगार होते ना, तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला ठंडा हो जाता। ठंडा होने से पाकिस्तान का बेहिसाब फायदा होगा। सर मेरा प्रश्न ये है कि अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी वो आज़ादी चाहती थी, और जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स थी वो अलहदगी चाहती थी। आज़ादी में और अलहदगी में फ़र्क है। और खान अब्दुल वली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि 1946 तक तो जिन्ना को खुद नहीं पता कि पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, और यहाँ तक जब बना भी तो यूनिस्ट पार्टी ने एहतजाज करना शुरू कर दिया कि हमें तो ये नहीं कहा था कि एक अलग रियासत बनेगी, हमें तो ये कहा था कि रियासतें बनेगी या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, और नीचे जो बाकी स्टेट होंगे वो आज़ाद होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया जल्दी कि उनको पता था कि हम आज़ादी हासिल करेंगे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए शायद लेट बना कि जिन्ना को खुद 40 तक तो पता भी नहीं था कि क्या पाकिस्तान बनेगा भी या नहीं बनेगा। मेरा सवाल ये है। देखिए, जब आप आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके दो मतलब होते हैं। मुसलमानों ने ये कहा था कि आज़ादी का मतलब है हिंदू से आज़ादी, जबकि कांग्रेस का ये कहना था कि आज़ादी का मतलब है गोरे से, अंग्रेज से आज़ादी। तो इसीलिए ये फ़र्क आ गया वहाँ पे। अच्छा, जहाँ तक इस नई रियासत के स्ट्रक्चर की बात थी, हाँ, ये बात तो तय नहीं थी। कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसमें भी एक नुस्खा पेश किया गया था कि कुछ रियासतें आज़ाद होंगी, प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया जाएगा इस तरफ या उस तरफ जाने का, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर या कॉन्फेडरल स्ट्रक्चर वो उसमें तय नहीं था। और जिन्ना साहब ने कभी इसके ऊपर कभी कुछ लिखा नहीं था, चुनाचे ये बिल्कुल एक खुला सवाल था 1946 में भी कैबिनेट मिशन प्लान के होते हुए भी। सर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं दिया गया, फिर बात कर लेंगे। Pakistan backwardness by joining the trade and modern technology. Is it possible to, as I am a student of scientific domain, is it possible to join trade, personal belief with the modern technology to get progress? Please comment as a scientist. Is faith and science reconcilable? बिल्कुल सर, सैयद अहमद वाली बात आप कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। आप देखें ईरान हालांकि एक मजहबी रियासत है, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तो नहीं, लेकिन
कुछ हद तक अपनी साइंस और अपने अकीदे को एक दूसरे से अलहदा रखा हुआ है। नतीजा ये कि आज ईरान और तुर्की दो मुसलमान मुल्क हैं जहाँ पर आपको साइंस दिखाई देगी, जहाँ आपको टेक्नोलॉजी दिखाई देगी। ईरान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिससे इसराइल डरता है और किसी मुल्क से नहीं डरता है, इसलिए कि इनको पता है कि the Iranians have science, they have technology। बहुत दिलचस्प बात है, मैं ईरान जब गया था तो मैंने देखा उनकी किताबों में, फारसी तो हम सबको थोड़ी थोड़ी तो आती है उर्दू की वजह से, मैंने उनकी किताबें खोली, देखा कि उसमें तो नजरिया इर्तिका पढ़ाया जाता है, डार्विन का नजरिया इर्तिका। मैंने अपने मेजबानों से पूछा, मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कुफर है। उसने कहा आपको किसने बताया, ये तो हमारे यहाँ आम पढ़ाई जाती है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि कोई कुछ उधर जो मैथमेटिकल फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस थी रश्त में, ये कैस्पियन सी पर है, मैंने देखा कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी बगैर तिलावत के। मैंने कहा ये क्या कर दिया, मगर वो कहते हैं उधर ऐसा ही होता है। साइंस और मजहब को वो एक दूसरे के साथ जोड़ते नहीं, यहाँ तो हर चीज में मजहब डाला जाता है। आप पीछे फलस्तीन का सब ठेका लिया हुआ है, इस वजह से दूसरा लोग तस्लीम नहीं करते, और आर्मिया को तस्लीम नहीं करते, क्या कुछ बनती इसका ठेका फलस्तीन फलस्तीन का आर्मिया को तस्लीम नहीं करते, इसकी क्या कुछ बनती है, हमें कुछ पता नहीं। इसको तस्लीम नहीं आर्मीनिया को अपार्ट फ्रॉम इसराइल आर्मिया को तस्लीम नहीं करते ना हमारी स्टेट, उसकी सब क्या कुछ बनती है। वो हम क्योंकि तुर्की के साथ हैं तो आर्मीनिया को हम नाराज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक है, ज़ाती तौर पर तो मैं उनके साथ हूँ। ये और बात है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन चलिए इसराइल से लड़ने के और तरीके थे, जो उन्होंने किया सो अच्छा नहीं है। लेकिन फ़लस्तीन के साथ हमने कोई कुछ ख़ास तो किया नहीं है। हम कहते हैं कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे, लेकिन ठीक है नहीं माना, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, वो आपको पता है। वैसे फ़लस्तीन की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज़्यादा है। सर मेरे क्वेश्चन तो यहाँ ख़वातीन सवाल नहीं करती हैं। देख रहा था किसी का हाथ। सर मेरा क्वेश्चन तो ये था कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, वो आपने बता दिया कि उसमें तो हम कम्प्लीटली लॉस्ट हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे हीरोज कौन है, कोई है जो डेड ना हो, अलाइव हो, क्योंकि हीरोज हमारा विजन डिफाइन करते हैं। क्योंकि मुझे तो ये मुल्क 2030 से आगे चलता हुआ दिखाई नहीं देता, ना तो हमारे पास विजन है, ना हमारे पास रास्ता है, कम्प्लीटली लॉस्ट है, बैठे हुए हैं डिस्कशन कर रहे हैं। जनरल बाजवा है, 2 अदर नोबेल प्राइज विनर्स हैं। जी सर, आप चाहे तो उनको अच्छा समझें, चाहे ना समझें। बहरहाल अब्दुल ने तो बाकी बहुत बड़ा काम किया था, इंटेलेक्चुअल काम किया था, जिसको पूरी दुनिया मानती है, हम जिससे इनकार करते हैं। ऐसा नाम फिजिक्स में तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा पैदा होगा, कम से कम आने वाली दिहाइयों में। और बड़े लोग, मैं समझता हूँ कि अब तो सरदार ईदी वो बहुत ही अजीम आदमी था, उसको भी हमने कोई ख़ास जगह नहीं दी, पर और लोग भी पैदा होंगे। जी, कोई लाइव है, कोई जिंदा है जो विजन दे सके हमें? विजन तो भाई आपको खुद ही पैदा करना होगा, आपकी अकल आपको बताएगी कि किस हद जाना है। आखिरी 2 सवाल हैं। सर मेरा सवाल ये है कि हमारी स्टेट इतनी हमसे क्यों बोले जाते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट और जो भी पर्सनैलिटी जैसे कायदा है, इन पर हमें असलियत क्यों नहीं बताई जाती? इनका सवाल ये है कि हमें असलियत क्यों नहीं बताई जाती, क्यों हमें झूठ बताया जाता है तारीख की किताबों में। उन लोगों का ख्याल है, अच्छा मुझे याद आ रहा है, मैंने यही सवाल अपने
वाइस चांसलर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से किया, और उनका नाम था डॉक्टर दिलेर खान। डॉक्टर दिलेर खान से मैंने एग्जैक्टली ये पूछा कि कहा बल्कि कि हमारी तारीख की किताबें तो झूठ का पलंदा है, हम बच्चों के अंदर ये भर भर के कीना भरते हैं और उनको हम जो सच्चाइयाँ हैं उनसे महरूम रखते हैं। तो उनका जवाब था कि अगर हमने ये नहीं किया तो वो पाकिस्तान से प्यार कैसे करेंगे। And I was shocked by that reply. क्या ये पूरा मुल्क झूठ पर मबनी है? मेरा ख्याल है अगर हम ये कहते हैं कि झूठ पर बना है फिर तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर दिलेर खान की बात बिल्कुल गलत थी। अगर हम अपने आप से सच बोलें तो फिर हम अपनी खराबियों को ठीक भी कर सकते हैं। अगर हम ठंडे दिल से ये गौर करें कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे क्यों जुदा हुआ, तो फिर हम बलोच की बात भी समझ सकेंगे। हम ये जान सकेंगे कि इस वक्त जो KPK में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हम अपनी माजी की गलतियों से अगर सीखते हैं तो हमारा मुस्तकबिल उसे समझ सकता है। एक दो सवाल इकट्ठे कर लेते हैं, आप पहले करिए। सर मेरा सवाल ऐसा है कि आपने कहा था कि साइंस जो है वो मार्क्सिस्ट सोच को कनेक्ट में मदद देती है, तो अब हर बंदा तो साइंस का स्टूडेंट नहीं होता। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप फिजिक्स के उस्ताद हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर अगर हमने मार्क्सिस्ट सोच को तजवीज़ देनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, और मजहब जो है इसका क्या रोल है इस सोच को दबाने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ये साइंसी सोच रखने के लिए आपको साइंसदान होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई यू डोंट नीड टू स्टडी फिजिक्स या मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस जैसी ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो और अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी सोच रैशनल होगी, मंतकी होगी, जब आप कहेंगे कि मुझे सबक बताओ, मुझे दलील दो, मुझे इसकी मंतिक बताओ, तब आपकी सोच साइंसी होगी। और चूंकि हमारे अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डाली जाती तो हम न साइंस कर सकते हैं और न ही आर्ट्स कर सकते हैं, कोई चीज़ तख्लीक करने की भी हम काबिल नहीं होते। साइंसी सोच आती है अक्ल के इस्तेमाल से और किसी चीज़ से। लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का या जितने भी आप बताएं इंडिया हमारे से आगे है, तो अगर हम लोग देखें आप न्यूक्लियर फिजिक्स के टीचर हैं तो हम लोग ये डिफरेंस बनाते रहेंगे इतनी इजादारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो ह्यूमंस है। अगर बॉम्ब की बात की जाए तो उधर भी तो नुकसान होगा ना, तो हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजीज ये सारी डेवलपमेंट्स कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो नुकसान होगा ही होगा, तो क्या वहाँ पर ह्यूमंस नहीं रहते? किस चीज़ से नुकसान होगा? न्यूज़ जितने भी सारे हमारे पास होंगे, तो अगर हम लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस तरफ अटैक कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम अपना दिफा कर रहे हैं तो आगे अटैक कर रहे हैं, आगे भी तो ह्यूमंस ही है, तो फिर वहाँ पर भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कितना अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, एटमी हथियार एक बहुत बड़ी लानत है। आपने ये देखा कि अब दुनिया में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इस वक्त यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग हो रही है, उधर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इधर इंडिया पाकिस्तान, उधर इसराइल अरब। तो दुनिया के कई खित्तों में अब ये एटम बम हैं दोनों तरफ, और अगर खुदा न खास्ता ये इस्तेमाल हुए तो जो हिरोशिमा में हुआ वो तो कुछ भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा बुरा होगा। लिहाजा अब ये इंसानों पर मुनहसर है कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि ये बनाना छोड़ दें और जो हैं उनको रफ्ता रफ्ता कम करते चले जाएं। अब होश कब आएगा ये मुझे नहीं पता, कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता। मैनेज करने का तो क्या ही बना क्यों नहीं है?
बना क्यों रहे हैं, ये इंसान की आप समझ लीजिए कमअक्ली है, उसकी अंदर की कोई खराबी है। वो समझता है कि अगर मेरे पास बम हो तो कोई मुझ पे हमला नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके नतीजे में जो मुखालिफिन हैं वो भी बम बना लेते हैं। ये सोच थी अमेरिका की कि हम ही हैं जिनके पास ये बम हो सकता है, लेकिन उसके 2 साल के बाद सोवियत यूनियन ने बना दिया, उसके बाद फिर फ्रांस, चाइना, बरतानिया, इन सब के पास हो गया, और उसके फिर बहुत बाद इसराइल, फिर इंडिया, पाकिस्तान, अब ईरान बनाने वाला है। तो ये चीज़ जो है फैलती चली जाएगी, ये कैंसर की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए, और बाकियों के सवाल के जवाब तब मिलेंगे जब किताब लेंगे आप। लेकिन आप हमें कोई प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड बताएं। हमारी यूथ बड़ी पेसिमिस्टिक हो रही है, हमें क्या करना है? एज यूथ व्हाट विल डू? पहले किताब खरीदें उसके बाद। अच्छा है, क्या करना है? जाहिर है कि मैं ये नहीं बता सकता कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करियर लेना चाहिए। ये आपकी अपनी सलाहियत, आपके अपने जो हालात हैं, घर के हालात, जो माली हालात, वो देखते हुए करना होगा। लेकिन मुख्तसर ये कि ये दुनिया बहुत कम्पिटिटिव हो गई है, और आपको वो स्किल्स हासिल करने हैं जो आप या पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकें या बाहर, जो डिग्री